Welcome all dear students and doctors in Ayurveda Adhyan e-lecture series, and this is the 22nd lecture, that is Shirashuladi Vajraras. As I have spoken in migraine lecture, we'll give detailed information in next lecture about Shirashuladi Vajraras. So please go to the migraine lecture and study, listen everything mentioned about migraine, Shirashul, everything, so you can understand the importance of Shirashuladi Vajraras, why we have taken this lecture for here. So let's start today's session. Before going to today's session, we'll do Naman to Lord Dhanvantari. Om Namo Sri Dhanvantare Namaha. Shirashuladi Vajraras, it's mentioned in Bhaishya Ratnavali Grantha, in Shirorodgadikar, as well as Ayurved Sarasangra. So this is a Bhaishya Ratnavali text. In this they have mentioned everything about this drug regarding ingredients, its Rogadikar. So we'll go to in detail in next slide regarding each ingredients. Shirashuladi Vajraras having Shuddha Parat, Shuddha Gandhak, Rasa Sindur, Loha Bhasma 1 part, Tamra Bhasma, Shuddha Gugul, Trifala, Kushta Churna, Yashti Madhu Churna, Shunthi Churna, Pimpuli, Gokshur, Vidanga, and Dashamul Kwat. So first is Shuddha Parat and Shuddha Gandhak. Together we can say Rasa Sindur. It is Yoga Vahya and Rasayan Dravya. It's important ingredient as is Rasa Kalpa. So Loha Bhasma, it's an important content of this medicine, having Tikta Kashaya, Vipak is Madhur, Virya Sheet. Then Tamra Bhasma having Kashaya, Madhur Katha, Katu Vipaki, Kafapitta Shamak, action on Rakta Dhatu, Yakrut Pliya and Balya and Vishanashak. Then Shuddha Gugul having highly recommended in Vata Vikara and inflammatory conditions. So we are using in headache Shirashuladi Vajraras. So Shuddha Gugul having significant ingredient and having is Tikta Ras, Ushna Virya, Katu Vipak, having guna like Ushna, Tikshna, Pachak, Shotahar and Shulahar. Next is Trifala Churna. Trifala Churna is very important in Ayurveda as well as in this Kalpa. Trifala is Kashaya Rasa Pradhan, Madhur Vipaki, Dipan Pachan, Kafapitta Shamak, Chakshuksha, Mehagna, Kushtahar and Anulomak. Kushta Churna having Rasa Tikta, Ushna Virya and Guna are Laghu and Tikshna, Shukra Shodhan, Vata Shaman, Lekhaniya, Vata Kapha Shaman, and it's effective against foul smell and headache. So it's very important to minimize the headache. So Shirashuladi Vajraras having this content. Then Pimpuli Churna, then Shunthi Churna. Shunthi is Kathu Ushna Madhur, Guna is Guru, Laghu, Tikshna, Tridoshak Shamak, Kapha Shamak. Action is Dipan Pachan. Yashti Madhu Churna. Yashti Madhu already we have studied in previous lecture. So we'll go to the next. That is Gokshur. So Gokshur is very important medicine ingredient in this, because it having Shula Nashak property, Shota Nashak property. Madhur Shita Madhur, Guna is Guru Snikda, Tridosha Shamak, and its action is Brahan, Vrusha, Agnikruta, Shulagna, Pramehagna, Basti Vatagna, Drushtida, Ashmarihar, Vasa Kasanot, means it decreases the Kasa, Arshanot, it decreases the subsides the Arsha Rog. So Gokshur Churna, Gokshur is a very important ingredient in this particular Kalpa. Then Vidanga Churna, Vidanga having Katu Ushna Katu, that is Rasa is Katu, Virya is Ushna and Vipak is Katu. It having Laghu, Ruksha, Tikshna Gun and Prabhav is Krumigna. As per Charak Samhita and Sushrut Samhita, they have mentioned in Shirorog, it's a good वी कैन से इसका जो कर्म है वो शिरोरोग में अच्छा है, ऐसा वहाँ पे उल्लेख मिला है.
भाव प्रकाश जी ने शूल आधमान और वात विबंध दूर करता है ऐसा मेंशन किया है। जनरली विडंग जो है कृमिघ्न, कृमिहर, प्रमेहर, शिरोरोगहर, वह्निकर, शूलहर, वातहर, अग्निमांद्यकर, तो इस सारे फंक्शन से शिरशूलादि वज्र रस में विडंग चूर्ण का काफ़ी महत्व है। आपने देखा रहेगा कि अभी मैंने जितने भी नाम लिए उसमें से गोक्षुर और विडंग इनका काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। और कुष्ठ का एक है कि वो शूलहर कर्म करते हैं। इसके पहले हमने यष्टि मधु के बारे में देखा तो वात पित्त शामक है और वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे जाके देखते हैं कि दशमूल के बारे में। तो दशमूल की प्रॉपर्टी आप सभी वैद्यजन जानते हैं और दशमूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है आयुर्वेद में। सो इट हैविंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, it pacifies the aggravated vata dosh, so it improves the function of organs located in vata location, it gives tones to muscle and smooth nerves। so ये सारे functions की वजह से दशमूल का जो मुख्य कार्य है शिरशूलादि वज्ररस में शूल को कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं रिपीट करता हूँ, विडंग, गोक्षुर, दशमूल और कुष्ठ ये सारे द्रव्य शिरशूलादि वज्ररस के कैसे एक्शन करने में इसमें शूल नाशक जो प्रॉपर्टी है। तो दशमूल का जो हम लोग देखेंगे तो इसमें 10 द्रव्य है। तो द्रव्य तो आपको पता है, बिल्वाग्नि, मंतक, शून्यक, टोटक, टेंटुक, पाटला, शालीपर्णी, प्रश्नपर्णी, वार्तारी, कंटकारिका, तो ये उसके कंटेंट है। तो उसमें बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल है, तो ये सभी जानते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। दशमूल जनरली वातनाशक है, कफ को प्राकृत करता है, रस, मांस, अस्थि धातु पे ज़्यादा काम करता है और नर्व्स और मसल, बोन एंड जॉइंट पे ज़्यादा दशमूल का कार्य है। दशमूल के जो फंक्शंस है आप सभी जानते हैं कि वो अच्छा आमपाचक है, बल्य है, श्वासहर है, शोतहर है और ज्वरहर है। तो दशमूल की इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के कारण शिरशूलादि वज्ररस में उसका समाविष्ट किया गया है। अभी हम जानते हैं शिरशूलादि वज्ररस के मात्रा और अनुपान के बारे में। तो इसकी जो मात्रा है जनरली 125 mg से हम 250 mg तक दे सकते हैं और शिरशूलादि वज्ररस वार्म वाटर के साथ, दुग्ध के साथ, मधु के साथ हम सेवन कर सकते हैं। और कोई ग्रंथकारों ने इसको गोदंती भस्म और हरताल भस्म के साथ भी देने का निर्देश दिया है और ये जनरली हम मैक्सिमम 2 महीने तक दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमें देना रहेगा तो हम 15 दिन तक ये दवाई को स्टॉप करके उसके बाद फिर चालू कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली 5-6 मंथ 1 ईयर तक नहीं देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है। अभी हम गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो शिरशूलादि वज्ररस जनरली वात पित्त शामक मेडिसिन है। तो ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये 125 mg है, वहाँ पे मिस्टेक है, वो आप उसको इग्नोर कीजिए। 125 mg टू 250 mg BD डोज दे सकते हैं और वार्म मिल्क के साथ, जनरली गोट मिल्क, हनी और घी के साथ गोदंती भस्म, पत्यादि काढ़ा या हरताल भस्म के साथ हम सेवन कर सकते हैं। शिरशूलादि वज्ररस के जो गुणधर्म है वात पित्त शामक, इसका मेन प्रॉपर्टी है। और हम अब देखते हैं कि शिरशूलादि वज्ररस के कौन से मेडिकल कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, मीन्स नाम ही काफ़ी है कि शिरशूलादि वज्ररस की शिरशूल को कम करने वाला एक महत्वपूर्ण कल्प, एक व्याधि प्रत्यनिक कल्प है। जैसे हम बोलते हैं कि व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है, वैसे एक व्याधि प्रत्यनिक कल्प है जो इन सारे मेडिकल कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो अनंतवात, न्यूरॉलजिक पेन, हेडेक, माइग्रेन में, हेडेक ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, हेडेक ड्यू टू लेट नाइट जगने के कारण, मानसिक दौर्बल्यजन्य शिरशूल में, मेंटल स्ट्रेस में, शिरशूल में, सूर्यावर्त में, टेंशन हेडेक में और वस्कुलर हेडेक में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई। तो इसमें जो कंटेंट है, जो सारे कंटेंट, दशमूल की मुख्य एक्शन है शोतहर और शूलहर, और विडंग की जो वहाँ पे एक्शन है वो जनरली शूलहर करके है और शिरोरोग में श्रेष्ठत्व बताया है, कुष्ठ शिरशूल कम करता है। और त्रिफला अनुलोमक है,
तो जो विबंधका है वो दूर करने में काम करती है, और यहाँ पे योगवाही द्रव्य भी है। तो इस प्रकार से ये सारे मेडिकल कंडीशन में काम करता है। तो पहली मेडिकल कंडीशन है हेडेक। तो हेडेक कौन से हेडेक में काम करता है, तो मैंने पहले ही बताया, तो इससे रिपीट करते हैं कि साइनसाइटिक हेडेक में काम करता है, यहाँ पे यूज़फुल है, टेंशन हेडेक में यूज़फुल है, और माइग्रेन हेडेक में भी यूज़फुल है। तो शिरोशूल, तो इसका जो रोगाधिकार आया है शिरोशूल रोगनाशक, शिरो रोगाधिकार में आया है। तो इसकी वजह से ये सारे कंडीशन में हम दोषावस्था को जान के अलॉन्ग विद अदर मेडिकेशंस एंड सूटेबल अनुपान के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो ग्रंथाधिकार है, रोगाधिकार, उसमें 11 प्रकार के शिरोशूल में उसका उल्लेख किया गया है। तो 11 प्रकार के शिरोशूल के बारे में हमने माइग्रेन के लेक्चर में बात की है, तो ज़रूर आप माइग्रेन का लेक्चर देखिए। शिरोशूल की कॉजेस, 11 प्रकार के शिरोशूल वहाँ पे उल्लेखित है। तो अनुपान को और व्यक्ति का, रुग्ण का दोष परीक्षण, नाड़ी परीक्षण, सारी चीज़ें करके आप उस विथ अलाइड मेडिकेशंस इन सारे कंडीशन में ये शूलहर प्रॉपर्टी है, इसके लिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है माइग्रेन। तो माइग्रेन अर्धाउपेदक, तो माइग्रेन के लेक्चर में हमने देखा है अर्धाउपेदक की कंडीशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य है, उसके बाद शिरोरोगाधिकार में उपयुक्त है, ऐसा ग्रंथोक्त रेफरेंस है। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें जो इंग्रेडिएंट है दशमूल, उसका शूलनाशक, शोतहर प्रॉपर्टी है, विडंगर जो है शोतहर शूलनाशक, शिरोरोगहर में प्राप्त बताया है, त्रिफल अनुलोमन करके विबंध को दूर करती है, कुष्ठ शिरोरोग में आई है। और बाकी सारी मेडिकल कंडीशंस है जिसमें यष्टिमधु है, उत्तम पित्त शापक, मधुर शीत मधुर द्रव्य है, और योगवाही द्रव्य है। तो ये सारे एक्शन जो है, जो वात पित्त संप्राप्ति है उसको भंग करने के लिए काफ़ी यूज़फुल काम करती है। तो शिरोशूलादि वज्ररस माइग्रेन की अवस्था में, शिरोशूल की अवस्था में, और जो बाकी है हार्मोनल हेडेक, वस्कुलर हेडेक, टेंशन हेडेक, इस सारे कंडीशन में एक अच्छा मेडिसिनल ड्रग है। तो समरी तो वही रिपीट है, इट्स अ वेरी गुड व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य, having we can give in all types of headache including gastrointestinal type of headache, in neurological headache, hormonal type of headache, occipital headache, then hormonal type of headache, migraine headache, suryavarta, anantavat, 11 types of shirorog with doses 125 mg to 250 mg BD dose for 2 months with pathyadhik vat, godanti hartal bhasma, honey or goat milk will be the good अनुपान द्रव्य। सो शिरोशूलादि वज्ररस के बारे में हमने आपको बताया था कि हम आपको माइग्रेन के लेक्चर में कि उसके लिए अलग एक लेक्चर लेंगे। तो ये हमने इसके कंटेंट, इसके एक्शन और कौन से ड्रग कहाँ पे कैसे काम करते हैं इन डिटेल में समझाने का प्रयत्न किया। तो चलिए डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आगे के लेक्चर में विथ आयुर्वेदा अध्ययन लेक्चर सीरीज़। सो थैंक्स अ लॉट dear students and doctor, kind listening and supporting to आयुर्वेदा अध्ययन लेक्चर सीरीज़। जिन्होंने अभी तक हमारे इस अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आगे की जानकारी, वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो नंबर यहाँ पे स्क्रीन को दिख रहा है आपको, वो ज़रूर नोट डाउन करके इस नंबर पे आपका नाम और शहर व्हाट्सएप कीजिए, उसमें मेंशन कीजिए आप विद्यार्थी है या प्रैक्टिशनर है, ताकि आपको हम आयुर्वेद अध्ययन के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें हम आपको ऐड कर सकें, और उसमें आपको हम डेली अपडेट्स पोस्ट करते हैं आयुर्वेद अध्ययन के बारे में, PDF स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग, और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी वैद्यों के पास, बाकी विद्यार्थियों के पास ये एक्टिविटी पहुँचे। सो मैं आप सभी का अध्ययन की टीम से फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आपकी सबकी अनुमति से यहाँ पे रज़ा लेता हूँ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में इन स्किन डिसऑर्डर सीरीज़। तब तक के लिए जय आयुर्वेद, थैंक यू।